शरद खन्ना जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. How did you started your wildlife company, tourism company, Indian Wildlife Adventures, and what was the inspiration behind it? It all started, during my school days. My love for wildlife started way back when I was a school-going person, and then this passion was kind of subdued and got somewhere down lost in the passage of time, and somewhere it got resurfaced. Some they say that you cannot hold on to something which is very dear to you, hidden from the view of and the passion started to come out in the early 2000, when I started to travel a lot into the wildlife area purely on as a tourist, and my love for wildlife, and more specifically love for photographing tigers. Okay. So as a wildlife photographer, I wanted to understand them better through my photographs and all that. So it all started during that time, and it peaked when I went for a trek into the Silent Valley National Park down south. Okay. And that gave me a deeper insight how vulnerable the forests are. Silent Valley National Park, where, sir? Silent Valley National Park is one of the best preserved and best preserved secrets of India. It's in fact the last surviving rainforest of South India. It is not very far from Coimbatore and Ooty. And this place was also a part of a big struggle way back in early in 70s 80s, when there was a dam to be proposed, and this was a last tract of rainforest. In fact, you will be surprised when you go there, if you happen to go there, and the mascot is lion-tailed macaque, which is an endemic species of macaques only in South India. You won't find it anywhere. Okay. And this place has 11 types of ecosystem, and beautiful place, and so much of hidden treasures. In fact, still a lot of plant and animals are they say that it's a gold mine. And you'll recently, some years back, there was a new species of frog that was kind of discovered. So that is a kind of biological treasure this place has, Silent Valley. Yes, and then my love for wildlife took me to places like Corbett, Ranthambore, Sariska, Kaziranga, and then of course the lions in the Gir. So each forest has its own story. Each forest has its own uniqueness, which you can actually, which I observe, and each habitat has its own, way of life. Like Corbett is, as it's rightly known as, the land of song, trumpet, and a roar, because it has very nice, healthy population of birds, very healthy population of Asiatic elephants, and of course one of the highest numbers of Royal Bengal tigers roam the forest of Corbett Tiger Reserve. I'll get back to Corbett, sir. Just 1 second. I was about to ask कि आप कह रहे थे 70s के अंदर सेंट फॉरेस्ट में डैम बन रहा था एक. What happens is that the Silent Valley was saved from extinction by none other than Srimati Indira Gandhi. Okay. And that time she intervened, and the project was shelved, and later on during the prime ministership of when we had Shri Rajiv Gandhi, that it was declared as a national park. And now it is core area of Nilgiri biosphere. Friends, there are very few biospheres in the world, and Nilgiri is one of the well preserved biosphere. Now when we talk about biosphere, biosphere is to preserve the entire ecosystem. It is much bigger, much broader than a national park or a tiger reserve, or even a reserve forest. Okay. So the core area of the Nilgiri biosphere is the Silent Valley National Park. And interesting thing about Silent Valley, how did it got its name? There are many stories, and each story has its legend, but the more realistic story is that it is because of the rainforest. It has an absence of cicadas, or jingurs as we call it in Hindi. You go to any of the forest in it's a rainforest, and which is different from deciduous forest. So Silent Valley में घुसने से पहले आपको deciduous forest मिलेंगे, वहाँ पर आपको झिंगुर या cicadas मिलेंगे. But when you go inside, because of the higher density, water density, and rainfall density, cicadas are not there.
So when the Britishers came in here, they saw that the forest is very silent because of the वो usual zoom din- zoom वाली आवाज नहीं आवाज होती. है. हाँ. And that's why one theory is that, and of Okay. course there are multiple theories, but yes. So अगर आप उधर जाओगे, still you will find it's a beautiful landscape, and because it is a rainforest. Every day it rains. Okay. Come what may. Even in the dry season, which is somewhere around April, some February, March, that's the driest season, and yet it rains there. And in fact, we had to take with leech socks to Okay. go into the forest because rainforest typically has a lot of leeches and Okay. and we always used to look कि किसके पास कितनी leeches है, so they were like our medals to us. So you went at the Saint Forest around 2002. This was around 2005, 2006. 2000. उससे पहले, yeah. And उससे पहले I've been doing a lot of wildlife surveys like Ranthambore wildlife waterhole census and Sariska waterhole census. जब हमारे को that was another very interesting story to observe wildlife from a very and this was nothing commercial. We were like volunteers कि हमारे को बोला जाता था कि okay, who wants to come and be part of this wildlife survey. So हम लोग पहुंच जाते थे and like हमारे को एक मचान दे दिया जाता था पेड़ के ऊपर एक प्लैंक बनाया and then throughout 24 hours from 9 o'clock on day 1 till 9 o'clock day 2 हमारे को मटका दिया जाता है, वो इसी में आपका पानी खाने का सब कुछ वो होता थी व्यवस्था. आपको नीचे नहीं उतरना है, आपको ऊपर 24 घंटे रहना है एंड पूरी दिन में इट्स लाइक एंड इट्स इन द थिक ऑफ द समर्स लाइक इन मे और एवरी बुध पूर्णिमा यूज्ड टू हैव इट. अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ द न्यू गाइडलाइंस एवरीथिंग इज डन थ्रू कैमरा ट्रैपिंग एंड ऑल दैट. तो उस टाइम पे इट वाज लाइक अ रॉ एक्सपीरियंस इनटू द फॉरेस्ट. तो 24 आवर्स आपको इसलिए रखा जाता था बिकॉज ऑफ मॉनिटरिंग उधर. हाँ, उसमें क्या होता था, वी वर लाइक फॉर एग्जांपल देयर यूज्ड टू बी अ वाटर होल, पानी के एक स्रोत होता था. तो जानवर, ये माना जाता है कि वाइल्ड लाइफ ऑलवेज कम्स वंस इन अ डे टू हैव क्वेंच देयर थर्स्ट, चाहे वो प्रेडेटर हो या बर्ड्स हो या कुछ भी हो. तो क्या होता था कि जब कभी भी जैसे टाइगर आएगा, वो दिन में या तो सुबह आएगा या शाम को आएगा. तो जनरली अपना सारी रात चला के एक पानी के स्रोत के पास आके पानी पी के then he will go back into the forest. So the aim was that, and being nocturnal animals, a lot of nocturnal animals used to come. So our aim was that suppose you have 10 deers coming, so chances are that only once in a day they'll come. नॉक्टर्नल एनिमल्स एक बार सर बताएंगे क्या नॉक्टर्नल होता है? एनिमल्स वो जानवर होते हैं जो रात को ज्यादातर अपने आप को एक्टिव करते हैं, जैसे लेपर्ड्स हो गए. Okay. टाइगर्स भी है ना, शाम को या सुबह के वक्त ज्यादा एक्टिव होते हैं. तो नॉक्टर्नल होते हैं जो रात में चलते हैं, रात में एक्टिव होते हैं. ऐसा क्यों सर, मतलब रात को? देयर आर मेनी केसेस बट some of them are by default like owls, जैसे उल्लू वगैरह होते हैं वो रात को ही करते हैं. लाइक बट कई बार क्या होता है, जैसे लेपर्ड्स हो गए, दे आर मोर एक्टिव. एक तो शिकार करने में आसानी होती है, डिस्टर्बेंस कम होती है उनके लिए. कोई ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी वन ऑफ द रीजंस कि दैट उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज करा है. लाइक पहले इंस्टेड ऑफ, एंड प्लस ऑफ कोर्स क्योंकि इन लोगों को गर्मी बहुत लगती है, तो धूप में ये जनरली मेजॉरिटी सर्दियों का टाइम कितना होता है, 1-2 महीने का, बट मेजॉरिटी टाइम अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में थोड़ी गर्मी और ह्यूमस ज्यादा होती है. तो नाइट में वैसे भी उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है, वेदर कंडीशन अच्छी होती है. So that's why they are more active during night. That's why they are called nocturnal animals. Some of them are there. But ऐसा नहीं है कि टाइगर कभी भी दिख सकता है. Tiger and leopard also, elephant also. Elephants are not nocturnal. They are practically every time. So ये था. And behavior की बात करें, every animal has a unique behavior. Like the tiger is a highly territorial animal. Territorial मतलब वो अपनी खुद की एक टेरिटरी, तभी तो उसको राजा बोला जाता है. भाई वो एक एरिया को अपना एरिया डिक्लेयर कर देगा. कैसे डिक्लेयर करेगा? इफ एनी मेल इज कमिंग, उसको वो चैलेंज करेगा. ठीक है. और उस टेरिटरी में वो अपनी मार्किंग करता है. वो अपना अब ये बोलेगा कि आपको कैसे पता लगा कि टाइगर कहेगा ये मेरे एरिया है. तो दे हैव दिस व्हाट इज नोन एज मार्किंग्स व्हिच दे डू. मार्किंग थ्रू this they do some kind of feces or urine and even they put the claws. कई बार पेड़ में claws मार देते हैं. Okay. यूरिन कर देते हैं, जिससे कि कोई अगर दूसरा टाइगर आ रहा है एंड वो फिर वो एक they do a unique kind of a display, कोई फ्लुमिनेंस डिस्प्ले where it's like
दे टेस्ट द स्मेल एज वी कॉल इट। Okay. तो वो पता लग जाता है कि ओके किसी टाइगर की टेरिटरी में आ रहा है, या तो यहाँ से निकल जाए हाँ. या उस टाइगर को चैलेंज करे। Okay. So if it's a young tiger, he was also looking for a, I think, ideal range of a tiger is around 15 square kilometers. Approximately, it can be less or more, around 10 to 50. Whereas for a female, it is much lesser. तो इस टाइगर के एरिया में जितने भी उसके एंगुलेट्स मतलब डियर हो गए, बंदर हो गए, जो उसके खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो सारा उसके अंडर में आता है। ही इज लाइक किंग ऑफ दैट प्लेस। सो सर लायन और टाइगर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेलाइन कौन है? देखिए बाय द बॉडी लाइन एंड थिंक टाइगर इज मोर स्टर्डियर एंड बिगर, बट उन दोनों में फर्क है, उनके बिहेवियर में भी फर्क है। टाइगर इज अ सॉलिटरी एनिमल, whereas lions are in Asiatic lions की अगर मैं बात करूँ, even African lions, but Asiatic lion because India में वही मिलते हैं, and they are limited in the areas of Gujarat and Gir. They are very social animals. Social animals in the sense that they have their own pride. Okay. And they're mainly dominated by the females. Okay. Males are then when they grow up they are generally have to Hunters. They have to fend for themselves. No, They are- females are hunters in हाँ, lion's females are pride. hunters and yeah, all that. Okay. So that is one aspect of it. Then elephants का अपना अलग होता है। Elephants is also very social. They're more, उनकी एज ग्रुप इंडिया के ह्यूमन से ज्यादा मिलती है, 70 इयर्स की होती है। तभी कहते हैं ना, अगर माउथ और हाथी का एक संबंध है, वो एक दो इट्स ऑफ टू फ्रेंड्स फॉर लाइफ। सो एशियाटिक एलिफेंट्स में आप देखोगे अफ्रीका में एलिफेंट्स आर नेवर बीन डोमेस्टिकेटेड। अगर आप ध्यान से देखोगे एशिया में they have been used for logging purposes traditionally, for forestry, surveillance इवन मैं कूर्ग भी गया था, उधर दोबारे एलिफेंट केव्स हैं, तो रिजर्व है उधर, तो वो एलिफेंट्स को मतलब अपने हाथ से ही खाना खिलवा देते हैं। हाँ, ये फीमेल्स ज्यादा होती है, मेल्स कम होते हैं। मेल्स को इतना आसान बट सर ऐसे भी हम वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर एलिफेंट ह्यूमन की तरफ चार्ज कर रहे हैं और एंग्री हो जाते हैं, तो वो सोशल कैसे होता है? वो मेरे साथ भी हुआ था कई बार। जैसे व्हेन यू कम टू क्लोज टू देम, व्हेन यू डोंट, देखो एवरी एनिमल हैव देयर प्राइवेसी। अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपके ड्राइंग रूम में जाके आपको बोल रहा और जी क्या हाल है आपके, रोज आके आपके ड्राइंग रूम में घुस के देख रहा हूँ, आपको कैसा लगेगा पहले? तो जानवरों के साथ भी ऐसे होता है। दे डोंट लाइक पीपल कमिंग एंड इंट्रूडिंग इनटू देयर लाइव्स, especially humans, because they know that somewhere down the line आप देखोगे that we are protruding into their lives, territories, and we are encroaching destroying forests and all. ठीक है, उनका घर बना लिया, उनका हमने कुछ ऐसी चीज बना ली, फिर उनका हैबिटेट खराब हो जाता है। उनकी एलिफेंट्स माइग्रेट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे ना, इसी हैबिट को करने के लिए राजा जी में एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है कि पूरी का पूरा हाईवे है ना। राजा जी कहाँ पे? राजा जी आपका ये हरिद्वार और देहरादून के बीच में बहुत सुंदर नेशनल पार्क है। कभी भी आपको हाथी देखनी हो तो वहां जाइएगा। तो उन्होंने हाथी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए क्या होता है कि अगर आप रोड पे बना दोगे, रोड जंगल के थ्रू निकालते, एक तो जंगल खराब होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो पूरा उन्होंने एलिवेटेड बना दिया जिसके एलिफेंट्स नीचे से निकल सके। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट नेचर इन ऑर्डर टू बी सस्टेनेबल। तो अगर आप ये सब तभी कर सकते हो जब आपको उनका बिहेवियर पता हो, क्या कैसी उम्मीद करते हैं, क्या करते हैं। दे आल्सो माइग्रेट, हाथी भी माइग्रेट करते हैं। टाइगर्स माइग्रेट नहीं करते, पर टाइगर्स टेरिटोरियल होते हैं, ठीक है। लायंस दे हंट इन प्राइड, दे आल्सो जनरली हैव देयर ओन एरिया ऑफ डोमिनेंस। लेपर्ड्स का है ना बड़ा डिफरेंट हिसाब किताब है। लेपर्ड्स आर वेरी कनिंग एनिमल। आई ग्रू अप, माय इंस्पिरेशन फॉर एक जो कहता है ना प्यार फॉर जंगल स्टार्टेड विद जिम कॉर्बेट की बड़ी मशहूर नॉवेल है, कभी फुर्सत हो तो पढ़ना जरूर, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। आप बिलीव नहीं करोगे, रुद्रप्रयाग के रीजन में उसको मारा गया था। रुद्रप्रयाग जहाँ संगम है अलकनंदा और मंदाकिनी का, जो बन के आपकी अलकनंदा मिलती है, आगे देवप्रयाग पे गंगा बनती है। तो रुद्रप्रयाग में क्या था, इस लेपर्ड ने काफी ह्यूमंस को किल किया था, आदमखोर बन गया था। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि आदमी अगर मर्डर करता है तो उसको फांसी की सजा होती है, राइट। टाइगर अगर मर्डर 3 बार या मिनिमम ऐसे कुछ है उनका लॉ, उसके बाद ही वो डिक्लेयर होता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम में नहीं होता? फर्स्ट टाइम में इट कुड बी एनीथिंग। सो वाइल्ड लाइफ लॉ का कुछ है ऐसा, मेरे को डिटेल नहीं पता, बट आप ये सोचिए कि दैट जानवर कभी है ना अपने स्वार्थ के लिए, अपने उसके लिए तब तक नहीं मारेगा जब तक वो
लाइक जैसे टाइगर कहते हैं ना मैनीटर क्यों होता है, मैनीटर कैन बी अ वेरियस फैक्टर, एक तो ओल्ड एज, इनएबिलिटी टू हंट, या उसको खून चढ़ गया। अगर जैसे एक देवर स्टोरीज और कॉर्बेट की एक मैनीटर टाइग्रिस थी, शी वाज नॉट एबल टू हंट, तो वो ह्यूमंस को हंट करती थी, और जो उसके बच्चे थे उनको ह्यूमन का गोश्त खिलाती थी। हाँ, तो दैट वाज डिफरेंट। तो एक अब उनको पता कि ये ह्यूमन ज्यादा आसानी से कर जाते थे मैन ईटिंग सभी। दैट्स व्हाई दे से दैट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा याद रखिएगा दैट इट इज द एनिमल दैट अल्टीमेटली इज मोस्ट पावरफुल, गेट्स उसको इट्स किल्ड बिकॉज ह्यूमंस तो अलाउ नहीं करेंगे। Sir, so if you give that space to the animals, if you allow them to furnish, वो कभी भी चाहेगा कि ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट ना करे। सर जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो फॉरेस्ट एरियाज इंक्रोच हो रहे हैं, तो क्या अब हम देखते हैं आए दिन हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि कोई लेपर्ड किसी गांव में आ गया, कोई वुल्फ कहीं आ गया, तो इसलिए जो है क्या ह्यूमंस और एनिमल्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक जगह पे? देखिए देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ को एग्जिस्टेंस, बट ऑनेस्टली बोलूं एनिमल्स का वो सस्टेनेबिलिटी वाला आइडिया तो है नहीं कि आपके पास आपकी हट है, आपके कॉटेज है, उसके चारों तरफ हाथी चले जा रहे हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अब तो सारा अर्बनाइजेशन हो रहा है कि जहाँ पर हम अर्बनाइज करते हैं तो टेक्निकली इन वन वर्ड नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कोएग्जिस्ट। वी नीड एन एरियाज व्हिच आर टोटली अनडिस्टर्ब्ड। अगर हमें, और मजे की बात है एक, आप ये नोटिस करना, जितने भी पानी के स्रोत हैं, द ओरिजिन ऑफ वाटर आर फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड टाइगर इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेस्ट। तो एक्चुअली अगर ह्यूमन सर्वाइव करना है यू हैव टू हैव टाइगर्स, बिकॉज टाइगर से जंगल बचेगा और जंगल से आपका पानी बचेगा, फूड चेन वगैरह में जो everything। तो अगर आप देखोगे जहाँ जहाँ पानी के मतलब नेचर के यहाँ पर जो नेचर प्रिजर्व्स हैं वहाँ से सबसे ज्यादा पानी का स्रोत निकलते हैं, चाहे वो कॉर्बेट हो। और अगर आप देखोगे ना हमारे जो बारिश होती है वो बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट होती है, बिकॉज फॉरेस्ट आर द रेन मेकर्स, एंड टाइगर उधर ही सर्वाइव करेगा जहाँ फॉरेस्ट होता है। टाइगर कैन नॉट सर्वाइव इन अर्बन एरियाज। तो टाइगर इज जस्ट अ सिंबल, टाइगर इज नॉट द एपिक। देयर आर अदर एनिमल्स आल्सो लाइक एलिफेंट्स, लाइक भालू, बेयर के साथ अच्छा। एंड इंडिया हैज यू नो रेड पांडा, वी हैव इवन रेड पांडा इन इंडिया, डू यू नो दिस? रेड पांडा, yes, in the northeast we have, you know, Sikkim area, northeast area, we also have brown bear also, okay, apart from Himalayan bear, sloth bear। so हमारे पास इतनी प्रजातियों की वैरायटी है, and they all threatened, why? because it's human and animal conflict somewhere down the line। अभी आप जैसे टाइगर की बात कर रहे थे, तो अगर इन केस में आप कह रहे थे दे आर कस्टोडियंस ऑफ फॉरेस्ट, इन केस आई एम वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट और मेरा इंटरेक्शन एक टाइगर के साथ होता है, तो मेरे क्या चांसेस ऑफ सर्वाइवल है? देखो उस केस में एक बड़ा अच्छा जोक है कि अगर टाइगर और आप मिल जाओ तो क्या मुझे क्या करना चाहिए? इसका सिंपल जवाब है, मैं कुछ नहीं करता, करेगा जो भी टाइगर करेगा, बिकॉज टाइगर इज एन एपेक्स प्रेडेटर। अगर हम टाइगर की बात करें और एलिफेंट की, इनफैक्ट टाइगर तो भी लिहाज कर जाता है, सबसे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं राइनोस एंड भालू। भालू का पता भी नहीं लगता है। अच्छा। एंड दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। टाइगर का ये होता है कि टाइगर इज अ जेंटलमैन, जैसे अगर आप सामने से आ रहे हो वो अपना रास्ता बदल लेगा। ओके। बट भालू का और इसका नहीं होता। एंड so it is not about it is the behavior of these animals। मैंने जैसे सुना था कि अगर जैसे आपके आगे टाइगर आए तो मेक योरसेल्फ अपीयर ह्यूज, कि अपने हाथ ऊपर कर लो और उसके साथ आई कांटेक्ट मत करो। हाँ, ये भी है। there are various things which you can do that, as I said that first of all वो आपके सामने आएगा ही नहीं, आपको दूर से देख के वो खुद अपना रास्ता पता भी नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए हम जिम कॉर्बेट में टाइगर दिखता ही नहीं है, लायन कभी दिखता ही नहीं है, जो मतलब इतने सारी सफारीज जाती हैं। मैं तो 3 बार हो चुका हूँ उधर डेजर्ट सफारी में, मेरे को आज तक नहीं दिखा। ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, टाइम मेरा होगा, जगह मेरी होगी, आपको वादा करता हूँ कि ये तो वो सांबर डियर दिखा देते हैं। बट हाँ, अगर आप एक टाइम पे जाओ जहाँ वेदर भी अच्छा हो, थोड़ी गर्मी होती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। मैंने तो टाइगर और हाथी की लड़ाई देखी है कॉर्बेट में, निकाला में। ओके। एक टाइग्रिस वाज वांटेड टू गो फॉर अ किल, वहां पर पीछे ना हिरन वगैरह ग्राउंड में चल रहे थे, शी वांटेड टू गो फॉर द किल। सामने से एक टस्कर आ गया, और हाथी और शेर, आप यू नो 2.5 का आंकड़ा होता है जंगल में। अच्छा। वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, अगर सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे को सहन भी नहीं कर सकते। अच्छा, सांप और नेवले की लड़ाई की तरह, मतलब आई मीन दे
दे अवॉइड ईच अदर, अगर आ जाते हैं दे डोंट दे डोंट कोएग्जिस्ट हाँ, इजीली। तो वो तो इनका क्या, उनके साथ खासियत क्या है कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं। ओके। तो मैंने टाइगर, क्योंकि टस्कर था मेरे सामने, टाइगर आ गया, मैं नहीं जाने दूंगा, और टाइग्रेस कहती है मुझे जाने दे। दोनों पे एक दूसरे मॉक फाइटिंग चल रही है, चार्ज चल रहा है। पूरा कॉर्बेट खाली पड़ा था, कोई भी जीप नहीं थी, और हम दूसरी साइड थे नदी के। एंड मैंने कहा यार आज क्या हो गया, आज कोई जीप ही नहीं दिखाई दे रही है, कुछ क्या हो गया, या तो कुछ दिख नहीं रहा है। फिर दूर से देखा कुछ फ्लैशेस की है ना, फ्लैश नजर आ रहा है, मुझे लगता है टाइगर साइटिंग चल रही है, कुछ साइटिंग या कुछ हो रहा है। हम गए, इट वाज अबाउट 10 किलोमीटर क्रॉस द रिवर। वहां पर गए तो वहां पर पूरा का पूरा, मतलब जैसे होता है ना कैवलकेड, जैसे प्राइम मिनिस्टर रैली हो रही हो, पूरी एक लाइनों से जिप्सियां खड़ी हुई हैं और वहां पर शो चल रहा है। कह रहा आप लोग तो देर चलिए, आधे घंटे से एक दूसरे के साथ भिड़ंत करे जा रहे हैं। तो दैट इज समथिंग, इट्स अ डिलाइट टू वॉच। डिलाइट, व्हाई आई एम सेइंग डिलाइट, ये ऐसी चीजें आपको नेचर के बारे में पता लगती हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं अनुभव कर सकते, क्योंकि वी आर ऑल अर्बनाइज्ड, एंड जंगल में आपको इतनी सारी कहानियां होती हैं। तो कौन जीता, वो टाइगर और लायन, वो उसमें एलिफेंट में? वो फिर आपस में एक दूसरे को, वो उधर से चला गया फिर वो उधर से चला गया। कोई चांसेस है ओवर पावर करने के एलिफेंट के, टाइगर के? मतलब एलिफेंट में तो ज्यादा जान होती है। एलिफेंट होता तो बड़ा, बट तभी वो ज्यादा से ज्यादा टाइगर है नहीं, एक छोटे बच्चे को मार सकता है, हाथी को तो नहीं करके सकता। हाँ, अफ्रीका में देयर बीन इंस्टेंसेस व्हेन लायनेसेस हैव एग्रीड, 4-5 लायनेसेस एक एलिफेंट के ऊपर चढ़ के उसको किल करने की कोशिश करती हैं, बट इंडिया में ऐसा मैंने देखा नहीं कि कभी किसी टाइगर ने एलिफेंट को किल करा हो पर से। हाँ, वाइल्ड अपना गौर को किल करते हुए देखा है। वाइल्ड गौर नहीं, हाँ, गौर इज लाइक अ huge buffalo found in the मध्य प्रदेश एंड साउथ इंडिया में। तो वो 6 फीट का बड़ा होता है, सो ह्यूज। नीलगाय टाइप? नीलगाय से मतलब इट्स मोर लाइक अ बफलो। गौर कहते हैं इंडियन बाइसन। ओके, इट्स मोर लाइक अ बाइसन, एंड उसको टाइगर ने जनरली किल करते हैं, एंड इट्स अ ह्यूज एनिमल टू ब्रिंग डाउन। सो डाउन साउथ में वगैरह होता है। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज देयर। एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ, it requires lot of patience, ठीक है। एंड मजे की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में नंबर 1 पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल बिहेवियर। ये 3 चीजें आप में होनी चाहिए। अब आप बोलोगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल बिहेवियर कैसा होगा, कि आपको पता है कि वो पानी पीने कब आएगा। पानी पीने के बाद क्या होता है कि लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि कैमरा उठा के फोटो खींचने लगते हैं। आइडली स्पीकिंग ये टिप होती है कि उसको पीने दो, थोड़ा सेटल डाउन होने दो, फिर उसकी फोटो खींचोगे। वो एकदम नहीं जाएगा, वरना वो जैसे लेपर्ड होते हैं, बड़े कनिंग होते हैं, वो जैसे आपने कैमरा उठाएंगे एकदम वो भाग जाएंगे अगर उनको पता लग गया। अगर वो पानी पी लेंगे, ही विल एक्सेप्ट यू और शी विल एक्सेप्ट यू योर थिंग, देन यू टेक फोटोग्राफ्स। कोई एकदम से आप एक्साइटेड होके करने लगते हो, तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस से जानते हो। या एलिफेंट है, एलिफेंट से हमेशा आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, ठीक है। कई बार जैसे होता है ना कि एलिफेंट चार्ज कर रहा होता है, एंड it's always better that you are maintaining a safe distance. Using a good zoom lenses will always help you, right? तो आप ये मत सोचिए कि आप पास जाओगे तो आपको अच्छी पिक्चर मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। पता लगा कि पास जाओगे तो आप पिक्चर में आ जाओगे हमेशा के। So you have to give respect of their privacy, keep a safe distance. अब safe distance क्या है? टाइगर को अटैक करने के लिए मिनिमम 20 से 30 मीटर का डिस्टेंस से, अगर वो नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। अगर आप 20-30 मीटर के डिस्टेंस पे आप हो एंड यू हैव अ क्लियर रोड, ठीक है, आप नीचे मत उतरो। बिकॉज क्या होता है, एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द जीप, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स दे ऑल फील दैट यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट जहाँ आप नीचे उतरते हो आप उनकी टेरिटरी बन जाते हो। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। सर, आप कितना पास आए हो टाइगर के? मैं कोशिश तो हमेशा अवॉइड करिए, तो ज्यादा हाथी के ऊपर होते हैं। जब हाथी के ऊपर मे बी यू आर अबाउट से 7-8 मीटर्स डिस्टेंस, ठीक है। वो भी यू नो नॉट अवॉइडिंग फेस टू फेस, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन एन एलिफेंट यू कैन गो नियर, बट मे बी 10 मीटर्स 15 मीटर्स, उससे ज्यादा। एक बार बांधवगढ़ में टाइगर हमारी जीप के पास से निकला था, वो खुद। अच्छा, दैट वाज वेरी क्लोज, बट दैट टाइम जो भी करा उसने करा, हमने तो बस स्टिल खड़े रहे अपना।
that is there. Okay. And you have to give respect to them. Then only they'll allow you to come near to you. बट आपने कोई सर्वाइवल स्टोरी सुनी है इन एन इंटरेक्शन विद अ टाइगर की, कोई मतलब बच के निकला है तो उसने क्या स्टेप्स लिए? कई सारे हुए हैं. there have been lot of attacks of tigers. Nothing let only tigers. मेरे को भालू ने एक बार चार्ज कर दिया. हम दाची गांव में ट्रेकिंग कर रहे थे. दाची गांव में? दाची गांव इज इन श्रीनगर ओके के आउटस्कर्ट्स पे. ओके. तो मैं, मेरे गाइड थे और 2-3 और मेरे साथ फेलो, वी वर गोइंग अलोंग. तो उसने बोला कि यार भालू की इसको स्मेल आ रही है. ही वाज एन एक्सपर्ट. ओके. So there was like a mount. ठीक है, जैसे बोला ना कि दैट कभी भी कैसे भी इंटरेक्शन होता है ना, जानवर भी डर जाता है, हम भी डर जाते हैं. तो वी जस्ट क्लाइम्ड अप. मैं आगे था, गाइड मेरे पीछे था. तो एकदम से एक भालू, हिमालयन बेयर थी एंड अलॉन्ग विद 2 cubs. ओके. वो एकदम ऐसे जैसा ना बेयर हक के लिए खड़ी हो गई एकदम. डिस्टेंस जितना जितना आपका और मेरा. एंड शी वाज मच बिगर देन मी. तो मैं पीछे जाने लगा. गाइड ने मेरे को मेरी गर्दन पकड़ के बोला कि स्टैंड स्टिल और अपने हाथ खड़े कर लो, बिल्कुल, मतलब जिससे कि आप भी उतने बड़े लगो. एंड ही स्टार्टेड मेकिंग नॉइज. लाउड नॉइसेस? हाँ जी, लाउड नॉइसेस. लाउड नॉइज. उससे क्या हुआ, वो भी स्टार्टेड हो गई. उसको भी समझ आ गया. देन शी बैक डाउन. ओके. क्योंकि एकदम से हुआ. अगर उसको पता होता हम आ रहे हैं तो वो आती ही नहीं ट्रैक पे. एंड देन वी ऑल्सो स्लोली केम बैक. तो कई बार ये होता है कि यस आई एग्री कि जब हाथी के साथ ऐसा नहीं कर सकते. वो तो ऑलरेडी इतना बड़ा, उससे बड़े तुम हो नहीं सकते हो. हाथी में 2-3 इंस्टेंसेस होते हैं. बट एज आई सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ऐसे एरियाज में जा रहे हैं, यू शुड अवॉइड वॉकिंग कमिंग डाउन फ्रॉम द व्हीकल. ठीक है, व्हीकल में हो आप मच सेफ हो, बिकॉज टाइगर और हाथी और इनको लगता है ये पार्ट ऑफ द सिस्टम. सेकंड, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस मिनिमम अप टू 15 to 20 meters. सो दैट मिनिमम, उससे ज्यादा करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा. क्योंकि उसमें क्या होता है, आप एंड नेवर अलाउ योरसेल्फ टू बी सराउंडेड बाय एनिमल्स. यानी कि आपने हाथी के झुंड के बीच में गाड़ी फंसा दी तो कोई भी चार्ज कर सकता है. एंड दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रिस्पेक्ट. टाइगर का आ जाता है लाइक यस, टाइगर आ जाए, tiger is still a gentleman, as I said. So उसमें next you have to stay still, absolutely hold your breath, and just pray कि nothing happens. Okay. तो जैसे हमने देखा कि कोविड के अंदर जब पॉल्यूशन कम हो गया था तो कितनी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हमें डेली अपने सिटीज में भी दिखती थी. बट अब पॉल्यूशन की वजह से वो दोबारा जा रही हैं. तो ये जो पॉल्यूशन है ये वाइल्ड लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है? It impacts a lot. अब आप देखिए, साइबेरियन क्रेन लास्ट विजिट इंडिया में कब करी थी? 2001 आई थिंक, 2000 या 2001 में. Okay. उसके बाद से वो लुप्त हो गई. समवेयर डाउन देन या तो पोल्यूशन था या हंटिंग था. पोल्यूशन से ये होता है कि दैट आपके जो हैबिटेट है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, या आपके जो पोल्यूशन वो हैबिटेबल नहीं है. उनका इम्पैक्ट हमारे पे हो रहा है तो जानवर पे नहीं हो. वो तो बिल्कुल, मतलब दैट इज समथिंग इट इज इम्पैक्टिंग. क्या था वो, जब कोविड टाइम था ना, जब आपके वाटर बॉडीज थे वो एकदम से लाइक रिवर्स वो साफ हो गए थे. फिशेस साफ दिखने लगी थी. उन्होंने दे हैड टेकन ओवर द रिक्लेम दैट एंटायर थिंग. अभी वो दोबारा से पोल्यूशन आ गया. यू कांट survive in a water which is contaminated with lead and other hard chemicals and all that. So that is one thing. So yes, that was COVID had its own advantages, disadvantages ज़्यादा थे. But एक advantage ये था कि वाइल्ड लाइफ हमारे को वो सीन दिखे जो सारी जिंदगी में हमने नहीं देखा होगा. यमुना इतनी साफ हो गई थी, अपने आप ही ब्लू वाटर हो गया था, बिकॉज कोई पोल्यूशन नहीं था. दोबारा वही हाल हो गया. तो मतलब इट्स वेरी सैड, बट क्या कर सकते हैं इस चीज के बारे में, मतलब स्टेप्स क्या ले सकते हैं? यू हैव टू डिसाइड कि डेवलपमेंट चाहिए या वाइल्ड लाइफ. ये कई बार ये डिबेट होती है. तभी देयर इज टॉक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन हाईलाइटिंग the richness of wilderness, richness of wildlife, richness of plants and animals. So tiger is not just a species. It is one of the species. There are other species. जैसे अब ये पेड़ है, ये सब ये अरावली के ओरिजिनल ट्रीज हैं. So all that will play a crucial role in the entire picture. So जैसे वो जिगजॉग पजल में हाथी भी है, भालू भी है, सांप भी है, नेवला भी है, कछुआ भी है, सब है. हाँ जी. और नदी भी है, नाले भी है, खलियान भी है. तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं ये कहाँ से ट्रैवल करके आती हैं, और आप जब इनकी फोटोग्राफ्स क्लिक करने जाते हो तो आप कौन सी साइट्स पे जाते हो? तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बर्ड्स. वन इज माइग्रेटरी एंड वन आर रेजिडेंट्स. रेजिडेंट होती हैं जो एंड इनफैक्ट माइग्रेटरी आल्सो विद इन द
ज्योग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, अगर एक जगह जो बाहर से आती हैं, जैसे जनरली यूरोप से आ रही हैं या सेंट्रल एशिया से आ रही हैं या तिब्बत के ऊपर से आ रही हैं, तिब्बत दे हैव बीन, जैसे बाहर हेडेड गूज हैं, वो पूरा हिमालयन रेंज को पार करके आती हैं। उनकी एवरेज फ्लाइट जो जहाँ पर एरोप्लेन्स उड़ते हैं 22,000 फीट, वो पार करके हिमालयन रेंज में इंडिया में आती है। तो दे कम कहाँ से आती है वो तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया से, ओके मेनली तिब्बत प्लेटो से आती हैं। So when they come and land into India, because why? Because there the temperature is so low, वहाँ का खाना सब कुछ freeze हो जाता है। Then they come to places, they start coming from Ladakh और in उत्तराखंड, धीरे धीरे करके पूरा नीचे आते हैं। तो then places like Bharatpur और सुल्तानपुर नेशनल पार्क in Delhi NCR. Delhi NCR is also known as the gateway for the wintry birds. You know why? Because Delhi is very uniquely positioned. अगर आप देखोगे 100 किलोमीटर्स आप ईस्ट में जहाँ आपको हिमालय जाते हैं, 100 किलोमीटर वेस्ट में जाता है और डेजर्ट आ जाता है। सो दिस इज अ स्मॉल पैच ऑफ प्राइम फर्टाइल लैंड विद लॉट ऑफ वाटर एंड फूड। तो जब बर्ड्स आती हैं इंडिया में थ्रू वेरियस what do you call from the outer Siberian region, and so they use the gateway, okay, and then they spread out and all that. So Delhi has been traditionally a very very good place for birding. आपको कई सारी species दिखती हैं, and winters में खासकर 300 plus species इंडिया में दिल्ली रीजन में होती हैं. Okay. So that is something which is unique. And yes, जब ये माइग्रेट करके आती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो बर्ड रिंगिंग करते हैं. BNHS है ना, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वो कई बार है ना, जैसे दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च प्रोग्राम्स जो बर्ड्स को रिंग करते हैं एंड उनमें एक नंबर, एक बैंड डाल देते हैं. तो जब और सम ऑफ देम यार पुट ट्रैकर लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर आल्सो. ओके. तो फिर अगर आप ये कहीं भी माइग्रेट करेंगी, वो ट्रैकर से है ना वो मॉनिटर होता रहता है, लाइक अ सैटेलाइट, लिटिल सैटेलाइट फोन. तो अब तो खैर ज्यादा हो गया, ट्रेडिशनली वो बैंड के थ्रू होता था, अब भी होता है. So if a bird is started from, say, let's say, it started from Luxembourg, that's there's bird, और वो माइग्रेट करती अफगानिस्तान पाकिस्तान के होते हुए थ्रू इंडिया में एंटर करती है. सो उसका इंडिया में हुआ, हमने इंडिया में मॉनिटर किया, अच्छा ये बैंड है, बैंड नंबर फोटोग्राफ ली, हमने वेबसाइट पे डाली, जो आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स की वेबसाइट्स है, उधर आपको वो उससे नंबर पूरा पता कि कहाँ से चली थी, कहाँ रुकी, आप भी फिर उस इंफॉर्मेशन, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट रिसर्च आल्सो. लक्समबर्ग से भी बर्ड आती है यहाँ, मतलब यूरोप, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, या सेंट्रल यूरोप से काफी सारी बर्ड्स. कितना मतलब ट्रैवल कर लेती है माइग्रेशन पीरियड में बर्ड? द मैक्सिमम जो बर्ड ट्रैवल करी है, एंड दे आर नोन हिस्ट्री, एक जो सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट बर्ड, इज अराउंड 14,000 किलोमीटर्स फ्रॉम मंगोलिया टू राइट अप टू साउथ अफ्रीका. कैन यू बिलीव दैट? कितने टाइम में सर? 3-4 महीने, 5 महीने, समथिंग लाइक दैट. तो माइग्रेशन होती है तो 1-2 महीने में थोड़ी होती है. एंड सब दीज बर्ड्स दे इवन फ्लाई ओशंस, एंड ओवरनाइट पूरा ओशन, ट्रांस ओशन ट्रैवल करके आती हैं. तो अगर आप देखोगे हिस्ट्री, हाउ दीज बर्ड्स कम, आती है पूरी थकी भी होती है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, देयर इज अ पाइट क्रेस्टेड कुकू, एक बर्ड है जो इंडिया में आती है बिफोर मॉनसून. इनफैक्ट उसको मेघदूत का इसलिए कहा जाता है कि वो इट कम्स अलोंग, इट माइग्रेट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका टू इनटू इंडिया. अफ्रीका से माइग्रेट करके अरेबियन सी को पार करते हुए इंडिया आती है. कैसे आती है? अलोंग द मॉनसून रेंज के जो विंड्स होती है ना इंडिया में आ रही होती है, उनसे पहले उनको पता लग जाता है कि विंड स्टार्ट होगी क्योंकि मॉनसून आने वाला है, तो माइग्रेट. तो जब ये बर्ड साइट हो जाती है, एंड इट्स लाइक अ थिंग कि किसान लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे ये बर्ड दिख गई है, मॉनसून ज्यादा दूर नहीं है. हाउ वी हैव बीन, अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनली एनिमल, हालांकि हम बात करते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, पर एक्चुअली वी आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन देम. पहले जब डिवाइसेस वगैरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एनिमल्स के थ्रू ही काफी चीजें असर्टेन कर लेते थे कि मॉनसून आने वाला है. एक थ्योरी है रेड वाटर लैपिंग, वो ग्राउंड बर्ड है. बर्ड कम समझते, चिड़िया हमेशा घोंसला पेड़ों पे बनाती है, नहीं कुछ बर्ड्स होती हैं जो ग्राउंड बर्ड होती है, जो ग्राउंड में होती है, वो पेड़ों में बैठती ही नहीं है. अच्छा. तो एक रेड वाटर लैपिंग है, उसकी कहावत है कि जितना ऊपर अंडा बनाएगी, अंडा देगी, उतना अच्छा मॉनसून होगा. ओके. तो ये
कुछ धारणाएं होती हैं, धारणाएं बेस्ड ऑन की दैट दे इंट्यूटिव पास। अब जैसे पाइट क्रेस्टेड कुकू है कि मानसून के साथ आती है, तो अब हर एक बर्ड का है ना इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। सो आप ये नहीं समझ सकते कि दैट कुछ बर्ड्स हेल्प्स इन यू नो फार्मर्स। अब सारस है, सारस इज दिस टॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, 6 फीट की बर्ड है सारस। हाँ, और जब वो डांस करती है इतनी सुंदर लगती है। तो वो इंडिया में है मतलब? इंडिया की वन ऑफ द लाइक कुछ स्टेट्स की तो स्टेट बर्ड भी है वो। अच्छा। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। हर एक बर्ड का एक रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है, हर एक एनिमल का रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस है, हर एक जंगल का रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस है। ये अब आपके ऊपर है, उसको आप कैसे एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और एज अ ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। हर एक जंगल की अलग कहानी है, हर एक जंगल आपको है ना हर एक स्टोरी। ये कॉर्बेट में हुआ था। हाँ। तो शाम का वक्त था। कॉर्बेट में क्या हुआ था सर? कि हम वेट कर रहे थे, ऐसी यू नो देखा कि टाइगर आके पानी पी के चला गया। फिर चलो अब ठीक है, अब थोड़ा सनसेट हुआ तो हम देखा कि हाथियों का झुंड, टाइगर जाते ही हाथियों का झुंड नीचे आने लगा। तो आया, आवाज करता हुआ आ रहा था नॉर्मल, मतलब उसमें से एक बछड़ा था, एक हाथी का छोटा सा बच्चा था, उसके साथ उसकी माँ थी। डिस्टेंस था, हम नोटिस नहीं कर पाए, तो वो उसके साथ ही चल रही थी मादा, ठीक है। तो जब नदी क्रॉस करने गए तो वो बच्चा डूबने लगा, ठीक है। हम मतलब जैसे वो जब उसकी आवाजें आ रही थी ची 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 करके जैसे, तो एकदम जो मदर थी ना वो पैनिक मोड में, जैसे होती नहीं मेरा बच्चा डूब रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो पैनिक मोड में है, तो बाकी हाथी भी आ गए। ओके। एकदम से एक हाथी आया भागता हुआ, फिर और पैरों से उसको मार रहे हैं, उसको उठा रहे हैं कि भैया डूब नहीं, पैरों से उसको होल्ड कर रहे हैं, यू नो लिटरली। और फिर बाद में हमने अपने जूम लेंस से देखा, हमने दूरबीन से देखा, उसका पूरा ये पैर है ना टूटा हुआ था, रैप्चर हुआ था, वो चल नहीं पा रहा था, किसी कारण से कोई चोट वोट लग गई होगी, गिर गया होगा, और वो लंगड़ा के चल रहा था। तो हम वही डिबेट कर रहे थे कि वो जंगल में पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 20 हाथी थे होंगे, 15 से 20 हाथी होंगे, पूरा एक घेरा बना दिया उस छोटे से जान को बचाने के। एंड दिस वाज लाइक एक मेरे को ये लगा कि यार सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों ह्यूमन लाइक बिहेवियर है, मतलब कि हेल्प कर रहे हैं ऐसे। उसका भाई आ रहा बचाने के लिए, सूट जैसे ही उसने चीख मारी वो दूर से भागता हुआ आया, कम से कम 500 मीटर भागता हुआ आया उसको बचाने के लिए, यू नो। और वो भी तेज ही आवाज करता हुआ, और पूरा जंगल गूंजने लगा। बिल्कुल यार नेचुरल ज्योग्राफिक मोमेंट हो रहा है मेरी लाइफ में, एंड आई गॉट दैट फुटेज, आई विल शेयर विद यू। अमेजिंग। जब आप एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आपने स्टार्ट किया, तो आपने मतलब फुल टाइम ये काम करना स्टार्ट कर दिया था? नहीं, फुल टाइम तो नहीं था। दिस इज पार्ट ऑफ माय कंपनी, जो जैसे मेरा ट्रैवल की कंपनी है, तो जंगल में जाने का मौका मिलता था, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाज लाइक अ पैशन। बट अगर आप इसको प्रोफेशनली लेना चाहते हो, लॉट ऑफ देयर वेबसाइट्स जहाँ आप अपनी यू नो फोटोग्राफ्स को पुट अप कर सकते हो, या वीडियोस को पुट अप कर सकते हो। लॉट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर आप अपनी मूवीज, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज टाइप बना सकते हो, उसको पूरी स्टोरी एक बना के कर सकते हो। तो आज की तारीख में इट इज हैज अ थिंग, बट यस revenues will come later, not immediately, you know. You have to make a mark. Okay. आपने पहले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से स्टार्ट किया, फिर देन इवेंचुअली यू स्टार्टेड योर ओन टूरिज्म कंपनी। Yes. So how do you promote eco tourism in that company? Yes, it's a very good question. आज की तारीख में देखिए जहाँ पर होता है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम रखूँ, अपना और अपने क्लाइंट्स का। कैसे? rather than जहाँ पॉसिबल होता है, यूजिंग transport which is less carbon intensive, like instead of petrol or diesel, I use more like trains for travel. So and also there are other factors which goes into it, जहाँ कोशिश हो करके मैं sustainable tourism को बढ़ावा दूँ। I'm not promoting plastic. I'm using less carbon intensive mode of transportation like trains or public transportation. You are not littering waste while also. उससे प्लास्टिक जंगल में जितना जाता है ना उतना, आजकल एक मेजर प्रॉब्लम यही है कि प्लास्टिक finds its way in areas where there are animal habitats like elephant के, tigers के and all that. So which is not a good thing. Okay. So I always try and promote avoid the use of plastic.
देखो चैरिटी बिगिंस एट होम। आई कैनॉट से कि मैंने ये बड़ी बड़ी चीजें करी, मैं वही कर सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, मैं और किसी को कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जहाँ मैं जाऊँ, एक तो कार्बन इंटेंसिव प्रैक्टिसेस करूँ एंड यूज ऑफ प्लास्टिक को अवॉइड करूँ। दैट इज व्हाई। तो अगर आपकी मतलब आपकी जो कंपनी है इंडियन वाइल्ड लाइफ एडवेंचर्स, वो कौन कौन से एरियाज के अंदर जो है वाइल्ड लाइफ वो एक्सपीडिशंस करवाती हैं कि क्या करवाती हैं? हाँ, वी डू लॉट ऑफ, एक तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, इवन एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक ट्रैकिंग। अभी मैं पिंडारी ग्लेशियर लेके गया था लोगों को। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इंडिया, नेपाल, भूटान, दे आर द एरिया ऑफ व्हिच आई डू इट बिकॉज दे आर मोर नियर टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट एंड थिंग्स। अगर हम एडवेंचर की बात करें तो ये ट्रैकिंग हो गया, नॉट लाइक हाई ऑल्टीट्यूड मेजर एक्सपीडिशंस, लाइक light treks, like not really I would call it a moderate trek to Pindari Glacier or even Sar Pass. So इस तरीके से या स्नो लेपर्ड का एक्सपीडिशन विंटर्स में, कभी अगर आपको स्नो लेपर्ड देखना है तो या February and March is a good time to come with me। और तो वो कहाँ पे मतलब एक्सपीडिशन? लद्दाख में होता है, स्पीति, जब आपका माइनस टेम्परेचर होता है तो वो नीचे आ जाते हैं, तो तब अच्छा रहता है उनके बारे में। तो आप वो भी कराते हो स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशंस? सो ये सब इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट पे है। ओके, नेम ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एडवेंचर्स। ओके, रियली नाइस टॉकिंग टू यू सर। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में और एनिमल बिहेवियर के बारे में काफ़ी बातें डिस्कस करी।